क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है कि फिल्म कि मुंबई जाएंगे तो फिल्म नगरी जाएंगे। बचपन में सुना था ये है फिल्मी नगरिया तू देख बबुआ। फिल्मों में आप जितने फाइट सीन्स देखते हो, हड्डी टूटने की आवाज़ है ना, कुछ इसकी आवाज़ सुनते हो आप। पहले पता था क्या आपको? 70% इसकी आवाज़ होती है, 30% उसको इफेक्ट दिया जाता है। जब उसे एडिट करते हैं तो थोड़ा बहुत इफेक्ट दिया जाता है, तब जाके आप सुनते हो। सो फाइट के सीन में कुछ इसकी आवाज़ आप इंजॉय करते हो। આ બાજુ બચ્ચન ભાઈ, આ બાજુ મોદી ભાઈ. મફતમાં હોટ સીટમાં મુંબઈ આવો ને 1000 રૂપિયામાં બેવાનો લાભ હા, એને લ્યો. સવાલ છે, એનો જવાબ દેવાનો છે. બસંત. બસંતીનું નામ શું બસંતી. પિક્ચરમાં મુંબઈની સફર કરતા હોય ત્યારે ટ્રેન જ જરૂરી ખરેખર તો એમાં જ મજા આવે. ચાલો, મુંબઈની સફર એવી છે, મુંબઈના માણસો સાહેબ લોકો ફ્રેશ થઈને તૈયાર થઈને પોતપોતાના મુકામે અત્યારે તો વાગી ગયા છે 10 વાગ્યા, એટલે નકર તો અમે ઊભી રહેવાની જગ્યા ના હોય. હવે વધારે વાર નહીં કરીએ અને અહીંથી આપણે જઈશું ગોરેગાંવ. વડાપાવ વડાપાઉં કે પકોડા હે? વડાપાવ ખાવાને આવે રસ્તામાં હે ત્યાં સુધી હજુ ને ભાઈ ગરમ ગરમ બનાવે છે ત્યાં. પોરબંદરના પકોડા. પોરબંદર ના ધોરાજીના અલા આપણે સોરી ક્યાં ગામના બોલો? હા, યાદ આવી ગયો. પોરબંદરના ફેમસ છે હો યાર. હા, જો વાય ભજન ચાલે છે મસ્તીના આપણા. તિરંગાઈ જાને અત્યારે ગોરેગાંવમાં નાસ્તો કર્યો, ભૂખ લઈ ગયા કારણ કે આજ ખાવાનું આપણે 11:30 વાગ્યા ત્યાં સુધી આપણે આટું એ ખાઈ ગયા આવડું મોટું નહીં યાર. તો લાવાલ આપણે કઈ ખાવામાં કમી નહીં રાખે. વડાપાવ તૈયાર થાય છે. ગરમા ગરમ વડા ઉતરી ગયા. કેટલા ખાવાના કહી દઈએ અત્યારે? ટેસ્ટ કરીને ભાઈ ખવો પડશે. ટેસ્ટ કરીને પછી ખબર પડશે. ये लो बिना चटनी का। આમાં કઈ નહીં આવે? કાંઈ નહીં. सूखा चटनी मीठा चटनी नहीं है? उसमें खाली ग्रीन चटनी डालो और ये हो घाटी चटनी. ना मीठी नहीं. बस बस. आपका क्या ये क्या? हाँ ये सही है. एक मेरे में घाटी चटनी ज़्यादा डालो हाँ ज़्यादा दिया इसमें। और डाल दो थोड़ा तीखा खा रहा हूँ. खरेखर मजा જ આવે નહીં ખાવાની. કેટલા ખવાશે? ત્રણે ત્રણે ગયો જાજારું કારણ કે આગળ ન ખાધા બધા ભજીયા ને એવું. ભજીયાનું ખાધું. હા પંકજભાઈ. આજે આપણે ગોરેગાંવ પહોંચી ગયા છે અને ફિલ્મ સિટીમાં રિક્ષામાં. ભાઈ ફિલ્મ સિટી માટે આ એક જ બેસ્ટ ને. બસ જવું એટલે મજા નહીં. છેવટે અમે તાગડ નીરા કરતાં કરતાં બસમાં જ જવું પડ્યું. થોડીક લાગવગ કરી પણ ન પહોંચ્યું. એમાં 2 વાગ્યાનું 3 વાગ્યાનું કીધું. મેં કીધું ભાઈ આમાં જ વ્યા જાય. આની ટિકિટ છે 1000 રૂપિયા. બોલીવુડ પાર્ક અહીંથી ટિકિટ લેવાની અને ઉપર જવાનું. ટિકિટ હોય અને 10 આમાં ટાઈમિંગ શું હોય? હા 5 1000 રૂપિયા ટિકિટ હોય. ફિલ્મ સિટીની અંદર 2.5 થી 3 કલાક જેટલો સમય થતો હોય છે અને જાસુ 1000 રૂપિયા ટિકિટ હોય છે. ઓય મારી હવે શું કરવાના? फेरवान जो बॉलीवुड पार्क को बनाया गया है वो इसी फिल्म सिटी का हिस्सा है, इसी फिल्म सिटी में बनाया गया है. इस तरह से प्रोग्राम है, इस तरह के कुछ रूल्स है जो आप सभी को फॉलो करने हैं. चलिए अपने अपने कैमरे ऑन रखिए ताकि कोई भी एक्टर किसी भी समय दिख सकता है जिसकी फोटोग्राफी आप इस बस से करेंगे. अंदर बहुत सारे आर्टिफिशियल सेट है. કેમ છો ભાઈ? તમારું નામ અને થોડોક પરિચય આપી દેજો. મારું નામ વૈભવ છે ભાટિયા. મુંબઈમાં રહું છું. તમારો બહુ મોટો ચાહક છું. અને ખાસ આજે અમે અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે ફિલ્મ સિટીમાં. આમ તો તમે ગયા છો કે નથી ગયા? એટલે આવું સ્પેશિયલ જોવાનું નહીં ગયા? સ્પેશિયલ એવું નહીં. ઘણી બધું એવું બનતું છે કે અમારા મોરબીની અંદર છે તો સાહેબ ઝૂલતો પુલ છે
તો એ ઝૂલતા પુલમાં અમે ખબર હોય પણ અમે ગયા ના હોય, એક બે વખત ગયા પણ કોઈ આવ્યું હોય તો અમે જરૂરથી જતા હોય છે, તો મજા આવતી હોય છે. આપણે આગળ તો હવે આની અંદર લગભગ 2-2.5 કલાકનો સફર છે, જોઈ છે કે કેવો સફર છે એ બતાવી દો. सब आर्ट से बनता है, यानी कोई सीरियल देख रहा है, कोई फिल्म देख रहा है, कोई एडवर्टाइजिंग एड फिल्म देख रहा है, सेट बनाने का जो मटेरियल यूज होता है ये वो कॉमन होता है. लकड़ी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, लाउड, थर्माकोल, फाइबर, कुछ लोहे की चीजें और क्लॉथ, इसी से सेट बनते हैं. बनाने के लिए काफी सारी मेहनत होती है. तो इस तरह से जितने भी सीरियल फिल्म ऐड दिख रहे हो उसके लिए आर्टिक कोशिश जारी है. हिंदी का काम चल रहा है, और स्कूल का वगैरह सीन है. देखिए प्राथमिक विद्यालय लिखा है वहाँ पे हिंदी में, इंग्लिश स्टार प्लस, मंडे टू सैटरडे. अभी तैयारी चल रही है, काफी टाइम लगने वाला है इसे कैमरा वगैरह सेटअप करने में. और गाड़ी मगर इसी जगह से जाएगी, यानी जिस रास्ते पे चल रहे हो वो रास्ता पूरा इंडिया का है. दिल्ली, गुजरात, पंजाब, उदयपुर, सब अपनी अपनी कहानी है. तो वो यही जगह है जहाँ से गाड़ी गुजर रही है. देखिए यार शूटिंग चालू છે, દેખાતું નથી એટલે લાઇટિંગ દેખાય છે ખાલી. हैप्पी बर्थडे टू यू. तो इस तरह से बर्थडे होते हैं, बर्थडे आपके बच्चों के यही जगह होती है. यानी सीरियलों में जो सीन दिखाते हैं किसी बर्थडे का वो यही जगह है, विवाह के सीन यही जगह है. और जेठालाल पानी पूरी बेच रहे वगैरह, बहुत सारे अलग अलग सीन होते हैं. एयरपोर्ट दिखा रहे हैं शायद, एयरपोर्ट वाला सीन है. देखिए आज का जो प्रेजेंटेशन है वो एयरपोर्ट है, वहाँ पे लिखेंगे उदयपुर एयरपोर्ट ऊपर, और एयरपोर्ट का बोर्ड वगैरह होता है. ऐसा इस तरह इलेक्ट्रॉनिक नया जो है वो इसी के अंदर बना है. वैसे गेट बंद होता है लेकिन आपके लिए खुला है वो अचानक से, कभी कभी खोल देते वो लोग. ऊपर लिखा है देखिए गोकुलधाम कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब्दुल का सोडा, चमको लॉन्ड्री, सोडी जी का गैरेज, ऐसे पार्ट है. तो फ्रंट वाला हिस्सा दिखेगा आपको, बाकी का पतरे से कवर किया है. कुछ सामान अंदर जा रहा है इसलिए दरवाजा खुला है. वैसे आर्टिफिशियल सेट है वो भी, लकड़ी, प्लाई, थर्माकोल, फाइबर, लोहे की चीजें और क्लॉथ, उसी से सोसाइटी बनाई है. परमानेंटली सोसाइटी नहीं है. और दरवाजे, खिड़कियां, डोर, विंडो है. अंदर कुछ नहीं है, अंदर खाली है. अंदर वाला सीन स्टूडियो में होता है, और स्टूडियो देखना है तो आपको जाना पड़ेगा बॉलीवुड पार्क. ખરેખર બહુ મજા આવે છે આ જગ્યા તો. તમને આજ બતાવ્યું હતું કે અલગ હતું? અલગ હે આ બધું અલગ છે. તમે આવ્યા ત્યારે આ નતું? આ ઉતારીને બતાવ્યું હતું કે નહીં? ખૂણે 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 રહી ગયા હતા, આ નથી લઈ જતા. જો ભટકાણા આ જગ્યાએ ફિલ્મ શૂટિંગ થઈ રહ્યું છે તો આપણે બતાવશે. તો હવે તમને જેટલું દેખાડવાનું કહેતા હોય એટલું દેખાડીશ તમને. આખો એક શૂટિંગનો ભાગ છે અહીંયા. બસ અહીં લઈ આવ્યા છે, જાય આગળ આપણે બધા લઈ જાય છે. बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, बहुत सारे पिक्चर में काम किया. अच्छा, वो सब समझ में आएगा. ये लोकेशन पर कौन सा फिल्म का शूटिंग हुआ है? ये लोकेशन पर कौन सा फिल्म का शूटिंग हुआ है? यहाँ पे 5000 से ज्यादा फिल्में हुई. बजरंगी भाईजान. उसका रीज़न क्या? हाँ? उसका रीज़न क्या है यहाँ पे शूटिंग ज़्यादा होना? रीजन क्या, कुछ भी नहीं. लोकेशन प्रोडक्शन को पसंद आते हो, शूट की जाती हो. अच्छा, हाइट ऊपर है इसके लिए? हाइट भी है और सिचुएशन दिखते हैं ना. अच्छा. जैसे किला बनाना है, पैलेस बनाना है. था टाइगर माशाल्लाह सॉन्ग. एक बात मुझे बताओ कि कोई भी लोकेशन बनानी हो या सेट बनाना हो तो टाइम कितना लगता है उसको? उसका टाइम जो है उसके बजट पे होता है. तो भी करीबन एक बजट, बड़ी बजट की पिक्चर होती है तो उस हिसाब से ना. आप शमशेरा देखो कितना बजट शमशेरा यशराज. 1-2 महीने में बन जाता होगा? 1 महीना, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 6 मंथ लगते हैं. 6 मंथ तक? हाँ, 6 मंथ तक सेट बनने में लगते हैं. डिपेंड बजट. हाँ, जैसे बंसाली साहब के लिए 6 महीने से ऊपर ही रहता है सेट. अभी जो सेट बनाया 8 महीने लगे उसे बनाने के. अच्छा. महबूब भाई फिल्म सिटी इसी नाम से है. શું કહો ભાઈ, મજા આવે ને? અમારા મોરબી વાળા છે. હા, આવું બધું જાણવાની મજા આવે, કંઈક નવું નવું શું કરે ને આ બધા. અને એ પાછળ ફિલ્મનું ઓલું અનુપમ સિરિયલ જોતા હોય જે લોકો, એનું એ શૂટિંગ ચાલુ હતું. કંઈક ગાડીનું શૂટિંગ છે, ઠેકડો મારશે કે શું કરશે ખબર નથી મને.
પાછા એ ગાડીમાં બેહાડીને લઈ જશે. જોઈ છે હવે આગળ શું લઈ જાય છે ફરવા માટે. यहाँ पे दुकानें वगैरह अभी सज रही है, संवर रही है. फिल्म मेकिंग वाले इस तरह से कलर वगैरह सब कर रहे हैं. ये जब पूरा हो जाएगा उसके बाद शूटिंग शुरू होगी. लेकिन जितनी भी फिल्में देखी बॉलीवुड की और जितने सीरियल देखते हो, मंदिर यही आता है. अभी भगवान आने का है, छुट्टी पे आएंगे जल्दी. मतलब लेफ्ट साइड टेम्पल मैदान है जगह का नाम. प्रत्येक सिरियलमध्ये पिक्चरमध्ये हे मंदिर दाखवतात. દરેક પિક્ચરના શૂટિંગ આમાં सिंघम बच्चों का स्कूल बनाया था. अनुपमा नन्ही सी परी अनाथालय दिखाया था. દરેક પિક્ચરના ફિલ્મના જે સેટ હોય अब्दुल का सोना खत्म हो जाता है जिंदू छुड़ाने के लिए वगैरह. जब भी घर पे जाओगे कोई भी सीरियल देख लो टेम्पल मंदिर यही है. વિશ્વમાં એક જ એવું મંદિર છે કે જે ભગવાન રોજ બદલે. પાછળ સિંગમ ગયો તો સિંગમ પોલીસ ચોકી હતી સિંગમ સિંગમની ઓલી બનાવી હતી પેલી જાહેરાત અહીંયા કઈ રીતે અક્ષય કુમારે સાયકલ લઈને ઉભો તો અક્ષય કુમાર રેડી કહેવાય. સાયકલ લઈને ઉભો તો ભાઈ અને આ મંદિર છે. इसके अंदर होता है, समझ लो ये स्टूडियो होते हैं, स्टूडियो नंबर 1 है. तो अंदर वाला सीन यहाँ पे होगा और जो सोसाइटी देख रहे हो आप वो खाली सोसाइटी है. दरवाजे, खिड़कियाँ, डोर, विंडो बाकी यहाँ पे दो चीज़ें अलग है. कंपोज करके दिखा के एयर कंडीशनिंग स्टूडियो होती है उसको. ભાઈ તમે તો કંઈક સમજાવો કે કહેતા નથી. તમે તો બીજી વાર આવ્યા હો યાર. મને સમજાવો. આ વેરાયટી બન કહેવાય ને. આ ઘર જ કહેવાય ને એકલું. લાઈવ શૂટિંગ ચાલુ હશે. અહીંયા બધું રિહર્સલ કરશે, તૈયારી કરશે, પછી અહીંયા શૂટિંગ ચાલુ કરશે. મજા આવે બધું જોવાનું. કઈ સિરિયલનું શૂટિંગ ચાલુ? હે પિશાચીની. શું થયું? હાલો આવું હાલો ચાલો જોઈ લો. આ એરપોર્ટ છે. ઘણા બધા લોકેશન બતાવ્યા પણ હવે લાસ્ટની અંદર જે કે બોલિવૂડ પાર્ક ઉપર લાઈન મૂકી દીધા. હવે આ બસ અહીંથી જશે અને પાછળ કેબીસીનું શૂટિંગ પણ થતું હોય છે. અને અહીંયા હવે મજા આવી તમને કે કેવું રહ્યું? સારું હો, પણ દૂરથી દેખાડ્યું, થોડે નજીક લઈ ગયો તો મજા આવે. આ છે મસ્તીનું જો બોલિવૂડ પાર્ક. એક વસ્તુ સારી કે અહીંયા તમારે ગમે એટલા શૂટિંગ બૂટિંગ કરી શકો. એટલે અહીંયા કોઈ રોકટોક નથી. અહીંયા વિડીયોનું શૂટિંગ થોડુંક એલાઉડ નથી પણ અહીંયા તમારે મજા આવી શૂટિંગ કરી શકો છે. બધા અલગ અલગ પ્રકારના શૂટિંગ તમે અહીંયા ટ્રાય કરી શકો. હા બોલિવૂડ શો જબરજસ્ત થીમ બનાવી છે. ક્યાં જવાનું? અચ્છા આમાં આવ્યા હતા કે નતા આવ્યા? તમે આવ્યા હતા? સંભાવ મેં જો ડબલ ત્રણ ગોલમાલ વાળો બોલ અહીંયા મજા આવે એવું છે. બાકી ક્રોમા સ્ટુડિયો અને બધું કેટલું હા. એટલે પિક્ચરમાં આવા શૂટિંગનું ઓલું હોય ને. રાજભાઈ ગયા હશે? રાજભાઈ ગયા કે નહીં તમે? આ ભાઈ ક્યાંક લઈ જાય. અહીંયા લઈ જાય રાજભાઈ. લઈ જશે સાઈડમાં. 70
એક પિક્ચર બતાવશે આમાં કાંઈ દેખાતું નથી મ્યુઝિયમ છે કે જેમાં કોઈ મિલ ગયા પિક્ચરમાં જે જાદુ હતો ને ભાઈ અને અમને કોણ ના ઓળખતું સાહેબ હા પછી ક્રિશભાઈ તેંડુલકર સાહેબ વાળ ખોટા હે સાચી વાત પૂછવાનું કે હું લખ્યું ઇંગ્લિશમાં તો બોલ મળી ગયા હું કાંઈ પૂછો ભાઈ ને જોવે વાળ ગળાય બોલાના દાઢીને તમારે એવું છે તો બેસી જાઓ હાલો આ બાજુ બચ્ચનભાઈ ને આ બાજુ મોદીભાઈ મફતમાં હોટ સીટમાં મુંબઈ આવો ને 1000 રૂપિયામાં હોટ સીટમાં બેવાનો લાભ એને સવાલ છે એનો જવાબ દેવાનો બસંતીનું નામ શું હતું પિક્ચર આપણા જે બંધારણના રચયિતા આ ભાઈનું નામ શું હતું જેના કારણે કેજરીવાલ ભાઈ સુપ્રસિદ્ધ થયા પછી એ ભાઈ દેખાણા નથી આ શું કરે બોલિવૂડ સ્ટાર એમ તો સ્ટાર છે અમારા પીકે જોડે ફોટો નથી પડાવો કારણ કે બાયકોટ કરવાનો હમણાં કંઈક લાલસિંહ ચડ્ડા સિંહનું શું હતું હમણાં કંઈક બોયકોટ કે શું કે હા વિરોધ ઇંગ્લિશ નામ છે બોયકોટ હું તો ઓલા બોયકોટ વાળ સમજતો તો મેં કીધું બોયકોટ વાળ કપાવવાનું क्या बात है बहुत अच्छा लग रहा है कि फिल्म कि मुंबई जाएंगे तो फिल्म नगरी जाएंगे बचपन में सुना था ये है फिल्मी नगरिया तू देख बबुआ तो आइए अब आप अंदर आए हैं तो आपने सोचा होगा कि बाहर तो आपने सेल्फी लिया लोकेशन को देखा आपसे कहा कि चलो कुरमा में भी चलना है आपने सोचा कि कुरमा कोई आने वाली फिल्म को कोई बहुत अच्छा सेट होगा जैसे अभी आप एंटरटेनमेंट में गए होंगे अंदर आते ही एक्सक्यूज मी यहाँ क्या होगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ क्या हुआ लेकिन आइए एक थोड़ा सा आपको देख कर ऐसा लगता है जैसा कपिल शर्मा शो में लोग बैठते हैं ना तो डायरेक्टर हैंडल करता है कि ये हाथ खड़ा करता आपको बाबा बोलना है ये हाथ खड़ा कर ताली बजानी है ओके तो अर्ज किया है उधार लेके मैंने खर्च किया है अर्ज किया है उधार लेके मैंने खर्च किया है कि कभी बचपन तो कभी जवानी है गुजरती किस तरह से जिंदगानी है कौन किस पर मेहरबान होता है आप आए आपकी बहुत बहुत मेहरबानी खुल के बोलिए कि दुनिया में काम करो तो ऐसा करो दुनिया में काम करो तो ऐसा करो कि दुनिया वाले खुद कहें कि तू रहने मैं खुद कर लूंगा ओके तो हंसते हंसते मुस्कुराते हुए और आइए अब हम यहाँ का सस्पेंस खोलते हैं कि यहाँ क्या होता है बाहर तो ग्लैमर्स की दुनिया है यहाँ क्या है यहाँ बैठना जरूरी है क्योंकि जो आदमी बाहर से नजर आता है उसके मन में झांकना होता है तो बॉलीवुड को आपने बाहर से देखा है अब बॉलीवुड के मन में झांकने के लिए तो मन के लिए एक ऐसा ही माहौल चाहिए एक्चुअली क्या है कि जब डायरेक्टर फिल्म बनाता है 3 घंटे की तो एक एक सीन में 3 रीटेक होते हैं तो 9 घंटे की फिल्म बन जाती है उस 9 घंटे की फिल्म को डायरेक्ट देख नहीं सकते तो जहां 9 घंटे की खिचड़ी को छौंक लगाया जाता है इस जगह को कहते हैं पोस्ट प्रोडक्शन क्या बोलते हैं जी हाँ यहाँ फिल्म की एडिटिंग डबिंग बैकग्राउंड म्यूजिक नंबरिंग फोली ने जाने क्या क्या यानी सेट करके उसके बाद उसको रिलीज किया जाता है और आप सोच रहे होंगे कि हमारे सामने ये बड़ा हरा पर्दा क्या है वैसे भी डॉक्टर ने कहा कि हरा रंग आंखों के लिए सेहत होता है तो ये तो है ही है लेकिन आजकल की फिल्में हरे पर्दे पर ही बनती हैं जी हाँ पुराने जमाने में जो शूटिंग करते थे कोई स्टंट वाला सीन होता था चोट लग जाती थी जैसे मान लो मदर इंडिया में नरगिस जी जल्दी जल्दी बच गई मीना कुमारी जी शूटिंग कर रही थी पाकिस्तान में उसमें बोट पे चल रही थी बोट उलट गई तो वो मर गई तो उनका देहांत ही हो गया डूब गई तो लेकिन अब कोई सस्पेंस नहीं कोई रिस्क नहीं अब तो यानी यहाँ पर बैठ के आप पूरी फिल्म बना सकते हैं तो ये है टेक्निकल डिपार्टमेंट क्या है
यानी जो फिल्म के पर्दे पर नजर आते हैं, यहाँ के कलाकार नजर नहीं आते। ये जो नजर आते हैं पर्दे पे, उनको स्टार बनाते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्रोमा। क्या देखते हैं? ये यस, सूरज जी मेरे साथ हैं। जी हाँ, तो आज वो मैंने कहा पारखड़दार खुश हुआ क्रोमा को देख के। अरे बाप रे, तू ऐसी बनती फिल्म, माय गॉड। हाय हाय अजी सुनो जी, आज से तुम मेरी फिल्म बनाओ, मैं तुम्हारी फिल्म बनाती हूँ। फिल्म का नाम होगा कहानी घर घर की। जी हाँ, तो क्रोमा देखिए कि कहा कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाकी। जी हाँ, क्रोमा के बाद बारी आती है डबिंग की। किसकी आती है? डबिंग। यानी डबिंग बहुत से कलाकारों की पर्सनालिटी चाहे कैसी रहे, जैसे मेरी पर्सनालिटी कोई खास नहीं है, लेकिन अगर आवाज में दम है तो बहुत से कलाकार हिट हो जाते हैं। जैसे अरे साहब कितने आदमी थे मैं जानता हूँ, बहुत सुधे मैं जानता हूँ। गब्बर सिंह आगे मेरी मौत का तमाशा देखने हैं। बाजे ये मजदूर का कातिया चल धनो, तेरी पसंदी की इज्जत का सवाल है। बलवा, अरे हम अंग्रेजों की जमाने की जेल है। और दरबार सुनो ये मेरे सामने। तो ये वो कलाकार हैं जो अपनी आवाज के माध्यम से आगे बढ़ गए। जी हाँ, और डबिंग इसीलिए भी की जाती है। दूसरा कारण ये है कि डबिंग का ये है कि अगर आप जब शूटिंग करते हैं तो वहाँ पर ढेर सारी आवाज़ें डिस्टर्ब करती हैं, बहुत से लोग डिस्टर्ब करते हैं। अगर मान लो आप अपने मोबाइल पे किसी का इंटरव्यू ले रहे हो तो देखा होगा किसी का फ़ोन अगर कोई बीच में बोल पड़ा, कोई बच्चा रो पड़ा, ऐसी तो डिस्टर्ब वाली आवाज़ें उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। उन आवाज़ों को कैसे डिलीट किया जाता है, उसके लिए दोबारा सीन को देखकर रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। सीन को देखकर रिकॉर्डिंग करने की कला को कहते हैं डबिंग। क्या कहते हैं? डबिंग कहते हैं। जी हाँ, जैसे मान लो बहुत से आर्टिस्ट नॉर्मल आवाज में एक्टिंग करते हैं, जैसे डायरेक्टर सामने का एक्शन, प्यार से दे रहे रख लो वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। थप्पड़ से देने लगता है, प्यार से लगता है, सच कहते हैं। जैसे ये सीन शूट हुआ, उसकी एडिटिंग करी, उसको उसके बाद डबिंग थिएटर में चलाया गया, दोनों कलाकारों को बुलाया गया, वो सीन दिखाया गया, देखिए दोबारा से आवाज को रिकॉर्ड करना है, देख लीजिए आपने क्या किस मूड में बोला था। उसके बाद वो डबिंग करते हैं तो रिकॉर्डिस्ट उस आवाज को थिएटर के हिसाब से बनाता है। प्यार से दे रहे रख लो वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। थप्पड़ से देने लगता है, प्यार से लगता है, लल्ला से लगता है। ताली बजा दो थोड़ा, क्या बात है। हमने यहाँ बच्चों की भी डबिंग करी है। तो यानी हर प्रकार की डबिंग करनी पड़ती है। खैर, डबिंग के बाद बारी आती है एक्स्ट्रा आवाजों की। किसकी आती है? जब फिल्म देखते हो यानी हीरो दौड़ रहा उसके पैरों की आवाज आती है, तूफान की आवाज आती है, न जाने क्या क्या आवाज आती है। उन आवाजों को कहते क्या है? वो आवाजें एकदम परफेक्ट आती है, बारिश की आवाज आएगी तो एकदम परफेक्ट आएगी। तो उन आवाजों का सस्पेंस खोलने के लिए हमारे पास एक ऐसे ही कलाकार हैं जिनका नाम है प्रथमेश कुमार जी। एक मिनट के लिए जोर ताली बजाइए, जोर ताली। ये चैप्टर देखने में बड़ा मजा आएगा आपको। आइए प्रथमेश जी। हेलो हाय, मेरा नाम प्रथमेश है। और जैसे ही हमारे पार्क में आपने एंटर किया तो हमने सेट्स वगैरह देखे होंगे, अपने बॉलीवुड शो भी आपने एंजॉय किया है अभी जस्ट। तो इस फ्लोर पे जब आए हो, यहाँ पे ऐसे फोटो खींचने लायक ऐसे कुछ है नहीं, पर ये जो है एक टेक्निकल फ्लोर है। यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा फिल्में किस तरह से बनती है। जैसे फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था बैकग्राउंड कैसे चेंज होता है, क्रोमा जिसे कहते हैं। ये ग्रीन फ्लोर है, यहाँ पे एक्टर परफॉर्म करके हम कुछ भी विजुअल्स उसके पीछे लगा सकते हैं। ये माइक इतना सेंसिटिव है कि सुई गिरने पर भी आवाज़ कैप्चर कर लेता है। तो सारे फॉल इफेक्ट इसी माइक से रिकॉर्ड करते हैं। तो किस तरह से आवाज़ बनेगी आइए देखते हैं। ये जो वीडियो देख रहे हो ना आप, इसे आवाज़ नहीं है, आवाज़ इस माइक से दूंगा मैं, जिसे फॉल इफेक्ट कहा जाता है। सो किस तरह से आवाज़ आएगी आइए देखते हैं।
सो ये एक पॉली इफेक्ट था। मिशन मंगल में आपने जितने भी आवाज़ें सुनी है कुछ इस तरह से वो रिकॉर्ड हुई है। हमें समझ में क्यों नहीं आता, क्योंकि इसका एक फंडा होता है, इसको पहले रिकॉर्ड कर लिया जाता है, उसके बाद में एडिट रूम में इसको एडिट किया जाता है वीडियो के साथ। ये आवाज़ें रिपीट भी होती है पर हमें समझ में नहीं आता है। उसके बाद आते हैं, जैसे आप देखते हैं 70% फिल्मों में फाइट सीन्स होते हैं और हर मौके पे एक आवाज़ आती है, किसी की हड्डी तोड़ी जाती है, किसी की गर्दन मरोड़ी जाती है। रियल लाइफ में पॉसिबल है क्या ये? अगर हम किसी को मारते हैं तो आवाज़ आती है क्या हमें? हाँ, चाटे की आवाज़ आती है थोड़ी बहुत, बट हड्डी टूटने की आवाज़ आती है क्या? नहीं आती है। तो ये एक पॉली इफेक्ट है। जैसे मैं बात भी कर रहा हूँ उस चीज़ की तो हमें हंसी आ रही है, तो आवाज़ सुन के और एंजॉय करते हैं हम। तो ये जो आवाज़ है कैसे बनती है, कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं, ये आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ये आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास बस एक प्लास्टिक की बॉटल है, इससे आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं। तो किस तरह से आवाज़ बनेगी आइए देखते हैं। फिल्मों में आप जितने फाइट सीन्स देखते हो, हड्डी टूटने की आवाज़ है ना, कुछ इसकी आवाज़ सुनते हो आप। पहले पता था क्या आपको? 70% इसकी आवाज़ होती है, 30% उसको इफेक्ट दिया जाता है। जब उसे एडिट करते हैं तो थोड़ा बहुत इफेक्ट दिया जाता है, तब जाके आप सुनते हो। सो फाइट के सीन में कुछ इसकी आवाज़ आप इंजॉय करते हो। उसके बाद आते हैं, जैसे आप अभी आए हो, शायद बारिश रुक गई है बाहर, पर हम जब भी आउट स्टेशन जाते हैं तो वीडियो ज़रूर बनाते हैं। और उसके बाद वीडियो जब हम देखते हैं तो सारी आवाज़ें आती है पर बारिश की आवाज़ नहीं आती उसमें। सो फिल्मों की बारिश बहुत साफ सुनाई देती है, क्योंकि वो भी एक्चुअल में रिकॉर्ड नहीं होता है, उसे फॉली इफेक्ट दिया जाता है, तो आवाज़ क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बारिश की आवाज़ बना के दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हम फिल्मी बारिश रिकॉर्ड करते हैं। ये आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास कुछ चावल के दाने हैं, इससे हम वो बारिश की आवाज़ रिकॉर्ड करेंगे। आप में से कोई आएगा यहाँ पे मेरे साथ बारिश की आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए? इतना आइडिया नहीं, ओके, प्ले। सो ये थे फॉली इफेक्ट, कैसा लगा आपको? ओके, सो ये थे फॉली इफेक्ट। मैंने तो आपको 3 ही फॉली इफेक्ट दिखाया है, पर एक फिल्म में कम से कम 2500 फॉली इफेक्ट होते हैं जो आके चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। उसमें डोर खोलने की आवाज़ है, यहाँ तक कोई चीज़ अगर गिरती है तो उसकी भी आवाज़ आती है हमें। उसके बाद अगर मैं बताना चाहूँगा आपको, जब भी कोई फैमिली खाना भी खाती है स्क्रीन पे तो खाना चबाने की एक आवाज़ आती है हमें। एक्चुअल में वो खाना नहीं खाते हैं, इस माइक के सामने हमें कुछ खाना पड़ता है तो वो आवाज़ उनको दी जाती है, जिसे कहते हैं फॉली इफेक्ट। सो ऐसे फॉली इफेक्ट रिकॉर्ड करने के लिए ना एक बस स्टूडियो होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको ओपनली सब इफेक्ट दिखा रहा हूँ। जैसे रिकॉर्डिंग का स्टूडियो होता है, एडिट का स्टूडियो होता है, वैसे फॉली के भी स्टूडियो होते हैं, शायद आपने देखा नहीं होगा। तो स्टूडियो में इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होते हैं और कैसे प्रॉप्स यूज़ करके हम आवाज़ें क्रिएट करते हैं, एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते हैं। होप सो आपको ये फॉली इफेक्ट अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। रिहर्सल होते हैं हमारे, सब कुछ हो जाता है। आज हमारा दिन आता है रिकॉर्डिंग, फिर हमारी सबकी एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। और आर.डी. सर बोलते हैं कि यस, लता दीदी और मोहम्मद रफ़ी सर यहाँ पे रहेंगे। नेक्स्ट सॉन्ग को किशोर कुमार सर और आशा भोसले जी भी आएंगे। तो अभी आपकी अरेंजमेंट सेम रहेगी। तो आपका अरेंजमेंट ऐसे होता है ना कि स्ट्रिंग सेक्शन, ब्रास सेक्शन, रिदम, परकशंस, वुड विंड्स, बैकिंग वोकल, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट और प्लेबैक सिंगर जो भी है हमारे गाने के वो। तो अभी उनके असिस्टेंट और वो ऐसे आपको बोलते थे कि यस, डे नंबर 1, सॉन्ग नंबर 2, टेक नंबर 3। तो इसका मतलब क्या होता था, लता मंगेशकर जी 6 गाने रिकॉर्ड करती थी एक दिन में। उतनी उनकी कैपेसिटी, उतना उनका नॉलेज था, स्किल था उनका। तो पहला गाना हमने रिकॉर्ड कर लिया, अभी हम कर रहे हैं दूसरा गाना रिकॉर्ड। इसके लिए हमने 2 बार ट्राई किया है, क्योंकि किसी ने कुछ तो भी गलती की तो हमको अगेन परफॉर्म करके अगेन रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो प्लीज़ कोई गलती मत करो, अच्छे से परफॉर्म करो तो रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि पहले जो गाने हम अभी सुनते हैं ना वो क्लियर नहीं इतने ज़्यादा, लेकिन पहले गाने एक लाइव परफॉर्मेंस हम अभी भी सुनते हैं, क्योंकि वो लिटरली 150-100 लोग एट ए टाइम परफॉर्म करते थे और परफॉर्मेंस साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड होती थी मैकेनिकली, और तब जाके हम सुन पाते थे, राइट। तो ये एक बात हो गई। उसके बाद में क्या होता है, हम जब डिजिटल जमाने में आते हैं तब आशिकी 2 सबने देखा है, उसके अंदर का कोई भी गाना सिंगर अंदर जाता है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, कुछ नहीं, ट्रैक बजता है, उसके ऊपर गा के बाहर निकल आता है।
वैसे ही अगर हमें चाहिए तो कोई इंस्ट्रूमेंट हम लेके जाके रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अभी चाहे आप बाहुबली देखो, RRR देखो, हॉलीवुड की कोई भी हैरी पॉटर, आई मीन जस्ट एनी फिल्म, इतना ग्रैंड म्यूजिक हम सुनते हैं लेकिन कोई बजाता नहीं उसको, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बजाया जाता है। लेकिन वो 80% म्यूजिक हम बैठे बैठे सॉफ्टवेयर की हेल्प से बना देते हैं और 20% हम इफेक्ट करके एडप्ट करके रिकॉर्ड करके डाल देते हैं। उससे आपको एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि यार सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है रियल में, लेकिन ये झूठा मूठा रिकॉर्ड होता है, राइट। तो ये हो गया डिजिटल रिकॉर्डिंग जो अभी होता है, जो बहुत ज्यादा क्लियर है पुराने गानों से। और पहला जो था वो एनालॉग मैकेनिकली रिकॉर्ड हुआ, पुराना वाला रिकॉर्डिंग। पहले हमें कॉपीज कैसेट्स में मिलते थे, हम टेप के अंदर फ्लिप करके यूज करते थे कैसेट्स, राइट। और अभी क्या होता है, हम ऑनलाइन जाके सब कुछ सुनते हैं, राइट। तो ये दो चीजें बिल्कुल अलग हो गई अभी की। लेकिन कभी कभी एक फैक्ट आता है, हम 8-9 घंटे के लिए जब ड्राइव करते हैं ना, बात करके एनर्जी वेस्ट नहीं करते, हम गाने सुनते हैं। तो नया गाना बजते बजते बीच में अगर पुराना गाना आता है तो हम बोलते हैं कि यार पुराना गाना सुनने में जो मजा आ रहा है ना, वो नए गाने में नहीं है, एवरग्रीन है पुराने गाने, ऐसे हम बोलते हैं। लेकिन इसका रीजन कभी हमने सोचने का ट्राई नहीं किया है। तो रीजन इतना खूबसूरत है ना कि भगवान ने हमें एक नेचुरल तरीके से बनाया है, हम नेचर का एक हिस्सा है, कुदरत का हिस्सा है। अगर हमारे माइंड के सामने दो चॉइस रखी जाएंगी और एक चॉइस में ऐसा कि यार सारी नेचुरल चीजें, चाहे हम कुछ भी खा रहे, पी रहे, देख रहे, सुन रहे, या फ्रेगनेंस भी इवन, इफ इट इज नेचुरल, हमारा माइंड विदाउट एनी प्रोसेस उसका एंजॉय करता है, राइट। लेकिन दूसरी जगह पे अगर नेचुरल छोड़ के कुछ भी रखो, डिजिटल चीज रखो या आर्टिफिशियल चीज रखो, उसको हम समझ तो पाते हैं, उतने हम कैपेबल है, लेकिन हमको प्रोसेस करना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो प्रोसेसिंग के अंदर हम थक जाते हैं, राइट। इसलिए हम बोलते हैं कि पुराने गाने में जो मजा है वो नए गाने में। तो जो इजी करने के चक्कर में टेक्नोलॉजी रिवॉल्व हुई है, उसको वर्ल्ड वाइड सबने एक्सेप्ट कर लिया, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री। लेकिन ये एक फॉल्ट है उसके अंदर का जो ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करता है, राइट। ओके, विद दिस इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग कि एक प्लेबैक सिंगर कैसे सोचता है। 4 डिपार्टमेंट में वो सोचता है। फर्स्ट, यार मैं जो गाना गा रहा हूँ ना, किसके लिए गा रहा हूँ, कौन सी फिल्म है और स्क्रीन के ऊपर कौन है, हीरो हीरोइन, सिचुएशन क्या है। दूसरी चीज लिरिक्स क्या है, इमोशन क्या है, कंपोजिशन क्या है। तीसरी चीज, जिसने गाना बनाया, लेट्स से R.D. बर्मन सर है, तो किशोर कुमार जी ये सोच रहे हैं कि यार ओके, तो हमारे R.D. बर्मन सर को क्या चाहिए ये गाने से, वो ये स्टडी करने के बाद वो ये सोचते कि मेरा अभी मैं ऐसे क्या ऐड करूँ कि गाना एक मेरा भी गाना बन जाए। ऐसे सोच के कोई भी प्लेबैक सिंगर यहाँ पे कैलकुलेटेड गाता है। और लाइव सिंगिंग में आप एंटरटेन करते हो लोगों को, आप खुद भी एंटरटेनमेंट करते रहते हो। तो जो बना बनाया गाना है, कंटेंट उसका परफॉर्म कर रहे हो, तो वहाँ पे गलती भी छुप जाती है, सारी चीजें हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको सोच समझ के एक एक वर्ड कैलकुलेटेड गाना पड़ता है। ओके, तो मैं एक डेमो देना चाहूंगा आप सबको। पॉपुलर गाना है, कंसिडर करो एक नया गाना है और मैं प्लेबैक कर रहा हूँ उसके लिए, राइट। थैंक यू सो मच योर, थैंक्स अ लॉट। ખરેખર તમારી સાથે બહુ મજા આવી ગઈ ને આ બોલિવૂડ પાર્ક આખું જે કહેવાય આપણે ફિલ્મ સિટી કે ને ઘણી બધી માહિતી મળી ને બહુ મજા આવી. તમને મજા આવી ને? 100% તમે હોય તો મજા આવે જ ને. અને મુંબઈ વાળાને કહેજો બધા વિડીયો શેર કર્યો ભાઈ. શ્યોર કહી દો તમે. બધા અમની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, શેર કરજો વિડીયો, બસ એટલું. થેન્ક યુ સો મચ. તો ચલો ભાઈ મળીએ આપણે હજુ કાલના વિડીયોમાં પણ પાછા ભાઈ જોડે છે અમારી સાથે. તો થેન્ક યુ ભાઈ. ચાલો ભાઈ.